So let's begin with the 7th chapter, Bills of Exchange. Now look at this, weightage is of 16 marks, practical question 10 marks का होगा, specimen of bill will be for 5 marks and objective will be 1 mark. Now to begin with पहले देखते हैं meaning of bills of exchange and then specimen means board exam में they want you to draw a specimen of bill of exchange जिसमें आपको information दिया होगा and with the help of that, on the base of that information, you have to draw a specimen of bill of exchange. So to begin with definition of bill of exchange, just read it once because वैसे भी we are not going to opt one line answers. So just read that definition. An instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay on demand or at a future date a certain sum of money only to the order of certain person or to the bearer of the instrument. So basically it's an unconditional order signed by a maker directing towards a person. We are directing to a person to pay a certain amount either to ourselves or to the person to whom we suggest. उसे हम लोग कहेंगे bills of exchange. So this is a definition of bills of exchange. Okay. उसके बाद पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज, एज वी ऑल नो पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज में फर्स्ट पार्टी होगा ड्रॉवर. सो ड्रॉवर कौन होगा? ड्रॉवर इज अ पर्सन हु विल ड्रॉ अ बिल. द वन हु ड्रॉज अ बिल इज कॉल्ड ड्रॉवर. सो ही इज ऑल्सो नोन एज मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. यहाँ पे एडिशनल लाइन में ये बोला है कि इसे हम लोग मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज भी बोलेंगे. सेकेंड, ड्रॉई. ड्रॉई इज अ पर्सन और अ पार्टी टू हुम the bill of exchange is drawn. The person on whom that bill of exchange is drawn is known as drawee. Drawee is the person who accepts the bill and that's the reason drawee को we can call acceptor also. So यहाँ पे drawee and acceptor means one and the same. So the one who accepts a bill or the person on whom the bill is drawn is known as drawee. So he is a second party. Third, payee. Now payee is a person or a party to whom bill is made payable. तो ultimately bill का amount, the one who receives that bill amount is known as payee. So payee is the ultimate person जिसको amount of the bill मिलता है. So we can say there are three parties to bill of exchange. One, drawer, the one who draws a bill. The one who draws a bill is called drawer. Another, drawee, the person on whom that bill is drawn or one who accepts the bill. So drawee is also called as an acceptor. And finally payee. Payee is the ultimate person to whom that amount is made payable, जिसको पैसा मिलेगा. Okay. Then coming to the specimen of bill of exchange. Now look at this specimen of bill of exchange. जब आप इसको ड्रॉ करोगे इन द बोर्ड एग्जाम, मेक श्योर दैट ये मार्जिन के बाहर होगा. दैट मीन्स दिस बॉर्डर लाइन विल बी आउटसाइड द मार्जिन. देन एक बॉक्स पहले बनाएंगे. ऑन द मिडल विल राइट द नेम बिल ऑफ एक्सचेंज. सी इन द मिडल देयर इज अ नेम बिल ऑफ एक्सचेंज इन कैपिटल लेटर्स. ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड देयर विल बी अ स्टैम्प. स्टैम्प प्रॉपरली बनाना, स्टैम्प साइज जैसे ही बनाना स्टैम्प. Then in front of that stamp, if you see in front of that stamp, there is a drawer's name. जो क्वेश्चन में अपने को दिया होगा तो पहले लिखेंगे ड्रॉवर का नाम, then drawer's address and date of the bill. Now date of the bill का मतलब क्या? जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ वो डेट यहाँ पे आएगा. तो वंस अगेन पहले बोर्ड एग्जाम में हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स प्रिपेयर करेंगे. बॉक्स में ध्यान रखो यू आर नॉट ड्रॉइंग द बॉटम लाइन बिकॉज बिल कहां तक जाएगा अपने को पहले पता नहीं है, तो बॉटम लाइन ड्रॉ मत करना. तो पूरा एक बॉक्स बना के मिडिल में पहले लिखेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन अ कैपिटल लेटर. देन ऑन योर लेफ्ट यू विल बी राइटिंग स्टैम्प. यू विल बी ड्रॉइंग अ स्टैम्प और स्टैम्प प्रॉपरली स्टैम्प साइज का बनाना, तो स्टैम्प जैसा ही दिखना चाहिए वो. ओके. इन फ्रंट ऑफ दैट स्टैम्प देयर विल बी ड्रॉवर्स नेम, ड्रॉवर्स एड्रेस and the date of the bill. Now date of the bill का मतलब क्या होगा? The day on which that bill is drawn, that is called date of the bill. तो इस तरह से initial part होगा. Then there will be amount in figures. Suppose आपका bill है 5,000 rupees का, तो 5,000 in figures you will be writing in a box below that stamp. Now
बिलो दैट देयर विल बी अ मैटर, वहां पे लिखा होगा डैश आफ्टर डेट डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। अब बोला है क्वेश्चन में 60 डेज, तो विल बी राइटिंग द वर्ड 60 डेज आफ्टर द डेट। और अगर बिल का पीरियड दिया होगा 2 मंथ्स, देन विल बी राइटिंग 2 मंथ्स, TWA 2 मंथ्स, TWO 2 मंथ्स आफ्टर द डेट। आफ्टर डेट पे Mr. or Mrs., that is name and address of the payee, or his order, the sum of rupees. Now we'll be writing here amount in words only for the value of receipt. तो यहाँ पे अगर 60 डेज का, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि 60 डेज का बिल है, तो वहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे 60 डेज आफ्टर डेट। तो यहाँ पे वर्ड आएगा 60 डेज आफ्टर डेट, पे to Mr. suppose Mr. A और his order। तो यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ पेई आएगा, और अगर क्वेश्चन में पेई का नाम नहीं दिया होगा तो ड्रॉअर इज पेई हिमसेल्फ। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ड्रॉअर ही पेई होता है, मतलब ड्रॉअर को ही पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे अल्टीमेटली ये याद रखो, अगर पेई का नाम नहीं दिया है तो ड्रॉअर का नाम, और अगर पेई का नाम दिया है तो पेई का नाम आएगा। ओके, सो यहाँ पे name and address of the drawer और his or her order, the sum of rupees। अब यहाँ पे अगर 5000 का बिल है तो हम लोग यहाँ पे वर्ड्स में लिखेंगे 5000 only for the value received। तो इस तरह से ये फॉर्मेट बनेगा। ओके, बिलो दैट इफ यू सी, यहाँ पे ऑन योर लेफ्ट हैंड कॉर्नर देयर विल बी अ ड्रॉइज नेम एंड ड्रॉइज एड्रेस। तो ड्रॉई का नाम एंड एड्रेस लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आएगा। देन हियर इट विल बी एक्सेप्टेड साइन विद द ड्रॉइज नेम, सो एक्सेप्टेड साइन होगा विद द सिग्नेचर ऑफ ड्रॉई, एंड डेट ऑफ द बिल एक्सेप्टेड, यानी डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, जिस दिन बिल एक्सेप्ट हुआ वो यहाँ पे आएगा। एंड देन ऑन द राइट हैंड कॉर्नर देयर विल बी ड्रॉअर्स नेम अलॉन्ग विथ हिज साइन। सो यू जस्ट हैव टू राइट SD/, दैट मीन्स साइंड, सो इट इज साइंड बाय ड्रॉअर। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज विच कैरीज 5 मार्क्स। तो वंस अगेन जब भी आप फॉर्मेट ड्रॉ करोगे एक प्रॉपर बॉक्स बना दो, हेडिंग कैपिटल लेटर्स, ऑन द लेफ्ट हैंड स्टैंप आएगा, उसके एग्जैक्टली सामने ड्रॉअर का नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बिल आएगा, स्टैम्प के नीचे अमाउंट ऑफ बिल इन फिगर्स आएगा, देन द मैटर दैट पर्टिकुलर डेज और डैश डेज आफ्टर डेट, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया था 60 डेज आफ्टर डेट, पे मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज सो एंड सो फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। तो ये उसका मैटर होगा बिल का। देन उसके नीचे ऑन द लेफ्ट हैंड कॉर्नर ड्रॉई का नाम, ड्रॉइज नेम एंड एड्रेस आएगा, बीच में एक्सेप्टेड का साइन अलॉन्ग विद ड्रॉइज नेम और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस आएगा, एंड द राइट हैंड कॉर्नर, एक्सट्रीम राइट हैंड कॉर्नर, देयर विल बी अ साइन ऑफ ड्रॉवर्स। तो इस तरह से बनेगा बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट। नाउ लेट्स सी जर्नल एंट्रीज इन बिल ऑफ एक्सचेंज। नाउ जर्नल एंट्रीज डिवाइड करते हैं। एज वी नो 2 पार्टीज देयर, ड्रॉअर एंड ड्रॉई। तो देखेंगे एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर एंड एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। तो अगर अपना क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम क्रेडिट सेल्स, मतलब ड्रॉअर सोल्ड गुड्स टू ड्रॉई, तो पहला एंट्री क्रेडिट सेल्स का आएगा। सी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर क्रेडिट सेल्स का एंट्री आएगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई एंट्री विल बी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर, मतलब ये एंट्री होगा क्रेडिट सेल्स का। तो अगर अपना क्वेश्चन, इफ आवर क्वेश्चन बिगिंस विद क्रेडिट सेल्स, that means suppose it is given Mr. A sold goods to Mr. B, so here A is a seller and B is a buyer, drawer is a seller and drawee is a buyer. So entry in the books of A will be B account debit to sales, that is drawee account debit to sales, we are talking about this entry. And entry in the books of B will be purchases account debit, because B ने purchase किया तो purchases account debit to drawer. So here this entry we are talking about. After credit sales purchases यहाँ पे दिया होगा acceptance of the bill, मतलब drawer bill draw करेगा और drawee bill को accept करेगा. So here acceptance का entry in the books of drawer आएगा bills receivable account debit to drawee, और यहाँ पे होगा that is in the books of drawee
ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। तो आफ्टर एक्सेप्टेंस वो बिल ड्रॉवर के लिए रिसीवेबल होगा, इसलिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, और ड्रॉई के लिए वो पेएबल होगा, इसलिए एंट्री आएगा ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। आफ्टर एक्सेप्टेंस मतलब ड्रॉई बिल पे साइन करने के बाद ड्रॉवर को उसको रिटर्न करेगा। ड्रॉवर को रिटर्न करने के बाद ड्रॉवर विल हैव 4 ऑप्शंस विथ हिम। अब वो 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? ड्रॉवर कैन रिटेन दैट बिल, दैट्स द फर्स्ट ऑप्शन, और ही कैन डिस्काउंट दैट बिल, दैट मीन्स सेलिंग बिल टू द बैंक, or he can endorse that bill, that means transfer that bill to his creditor, or that bill will be sent to the bank for collection. So one by one we'll discuss that. पहला ऑप्शन आफ्टर एक्सेप्टेंस ड्रॉअर के पास क्या होगा? ही कैन रिटेन द बिल। रिटेन का मतलब अपने पास रखना। सो फॉर रिटेनिंग द बिल देयर विल नॉट बी एनी एंट्री, सो देयर इज नो एंट्री फॉर रिटेनिंग द बिल। सेकेंड इज डिस्काउंटिंग द बिल। Here we are selling bill to the bank and we are getting money before the due date. So यहाँ पे you will be receiving money, and obviously you are receiving money before due date. Bank will deduct certain charge. That charge is called discount, which is loss for us. इसलिए discount account debit होगा. 2 bills receivable, because bill अपने पास से जाएगा. We are selling that bill to the bank. So 2 bills receivable account. सो डिस्काउंटिंग का एंट्री होगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। यू कैन राइट ओनली बैंक ऑल्सो, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर आप सिर्फ बैंक अकाउंट डेबिट लिखोगे देन ऑल्सो इट इज फाइन। सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। सो डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल का एंट्री ये होगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो हमने डिस्कस किया था वो था एंडोर्सिंग द बिल। नाउ व्हाट आई टोल्ड यू, व्हाट इज एंडोर्सिंग द बिल? ट्रांसफरिंग बिल टू द क्रेडिटर। So here drawer is transferring bill. Once again, his transferring bill means what? Bill is going out. See, in this entry also bill account is credited because bill is going out. And to whom he is transferring? To a certain person. So he is transferring means here transferring of the bill is called endorsing. The person to whom we endorse is known as endorsee. So he is the receiver. So here endorsee account debit to bills receivable account. So endorsement of the bill का entry आएगा endorsee account debit to bills receivable account. And next option, bill sent to the bank for collection. So here what we are doing, we are giving that bill to the bank for collection purpose. So when we are giving that bill, once again bill is going out, so bill account credited, and a new account, that bill sent for collection account, will be debited here. Because here we are not selling that bill to the bank, we are just giving. So bank is acting as a custodian of the bill. सो ड्यू डेट तक वो बिल बैंक अपने पास रखेगा। ऑन द ड्यू डेट बैंक बिल लेके ड्रॉई के पास जाएगा फॉर द कलेक्शन ऑफ द मनी। तो यहां पे बिल सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट होगा। 2 बिल्स रिसीवेबल, वंस अगेन इफ यू थिंक फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ड्रॉअर, ड्रॉअर के पास से बिल जा रहा है तो बिल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। सो ये 4 ऑप्शंस हैं, वापस एक बार रिपीट करते हैं। पहला ऑप्शन था रिटेनिंग मीन्स कीपिंग बिल विथ हिमसेल्फ, नो एंट्री फॉर दैट। डिस्काउंटिंग, सेलिंग बिल टू द बैंक। सेलिंग बिल टू द बैंक का मतलब होगा बिल इज गोइंग आउट, चेक करो यहाँ पे बिल अकाउंट क्रेडिटेड, एंड वी आर रिसीविंग मनी कैश बैंक डेबिट एंड डिस्काउंट डेबिट। आई टोल्ड यू यहाँ पे आप सिर्फ बैंक अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन इज एंडोर्सिंग। एंडोर्सिंग मीन्स व्हाट? ट्रांसफरिंग द बिल। ट्रांसफरिंग, वंस अगेन बिल इज गोइंग आउट, सी बिल अकाउंट, बिल नेम इज credited, and the person to whom we endorse is called endorsee, to endorsee account will be debited. Next is bill sent for collection. Once again bill is going out, अगर चेक करोगे तो बिल का नाम क्रेडिट में आ गया, and bill sent to the bank for collection account will be debited. तो यहाँ पे सिंपल वे से हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं, ड्रॉअर बिल के साथ कुछ भी करेगा, दैट मीन्स he is discounting, endorsing और sending it for collection. इन तीनों केस में बिल का नाम क्रेडिट ही होगा, एंड दैट रिस्पेक्टिव केस विल बी डेबिटेड। मतलब डिस्काउंटिंग के वक्त डेबिट होगा कैश बैंक एंड डिस्काउंट, एंडोर्सिंग के वक्त डेबिट होगा एंडोर्सी अकाउंट, और कलेक्शन के वक्त डेबिट होगा बिल सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। इन ऑल दीज केसेस देयर विल नॉट बी एनी एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। ड्रॉई के बुक में कोई एंट्री नहीं आएगा। रीजन, सी इन केस ऑफ रिटेन और एज इट इज देयर इज नो एंट्री।
डिस्काउंटिंग की बात करेंगे तो डिस्काउंटिंग का मतलब इट्स अ ट्रांजेक्शन बिटवीन ड्रॉवर एंड बैंक, ड्रॉवर एंड बैंक के बीच का ट्रांजेक्शन है. सो देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ड्रॉई इन दिस. वंस अगेन अगर एंडोर्सिंग की बात करेंगे तो इट्स अ ट्रांजेक्शन बिटवीन ड्रॉवर एंड एंडोर्सी. अगेन देयर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ ड्रॉई. If we talk about bill sent to the bank for collection, again it's a transaction between drawer and bank. Again, drawee is not involved. So in any of these transactions, drawee is not involved. That's the reason in the books of drawee there will not be any entry. तो ड्रॉअर बिल के साथ कुछ भी करेगा, कैसे याद रखेंगे? ड्रॉअर बिल के साथ कुछ भी करेगा मतलब डिस्काउंट, एंडोर्स या कलेक्शन, एवरी टाइम बिल का नाम क्रेडिट में ही होगा, बिकॉज बिल इज गोइंग आउट एंड दैट रिस्पेक्टिव केस विल बी डेबिटेड. सिंपल. डिस्काउंटिंग होगा तो कैश बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, बिल का नाम क्रेडिट में. अगर एंडोर्सिंग होगा तो बिल का नाम क्रेडिट में और एंडोर्सी अकाउंट डेबिट, तो एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. और अगर कलेक्शन वाला केस होगा तो इन दैट केस अगेन बिल इज गोइंग आउट, बिल का नाम क्रेडिट में एंड बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट विल बी डेबिटेड. एंड इन ऑल द केसेस इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई देयर विल नॉट बी एनी एंट्री. नाउ विल सी आफ्टर ये 4 ऑप्शन एक्सरसाइज करने के बाद ऑन द ड्यू डेट 2 पॉसिबिलिटीज हैं. एक तो बिल ऑनर होगा या बिल डिसऑनर होगा. Now let's start with the honoring the bill. अगर on the due date bill honor हुआ, bill honor means what? Drawee is making payment on the due date, उसको बोलते हैं bill honor करना. तो अगर bill honor हुआ, in that case हम लोग देखेंगे एंट्रीज क्या पास होंगे. Once again हमने 4 केसेस लर्न किए थे, रिटेन, डिस्काउंट, एंडोर्स, कलेक्शन. अब 1 by 1 हर एक केस में अगर बिल ऑनर हुआ तो क्या एंट्री आएगा, दैट विल सी. फर्स्ट केस रिटेन्ड बिल ऑनर. इफ दैट बिल इज रिटेन्ड विद द ड्रॉअर, if that bill is written with the drawer and it is honored, अगर बिल ड्रॉअर ने अपने पास रखा है और वो ऑनर हुआ, मतलब क्या ड्यू डेट में ड्रॉअर को ही पैसा मिलेगा, तो एंट्री आएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. कैश बैंक अकाउंट डेबिट बिकॉज ही इज रिसीविंग मनी एंड बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट बिकॉज दैट बिल इज गेटिंग कैंसल्ड. तो रिटेन बिल ऑनर का एंट्री आएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. नेक्स्ट डिस्काउंटेड बिल ऑनर. ट्राई टू अंडरस्टैंड डिस्काउंटेड बिल का मतलब क्या. ड्रॉअर ने दैट बिल has already been sold to the bank. ड्रॉअर ने वो बिल ऑलरेडी बैंक को बेच दिया. दैट मीन्स दैट बिल इज देयर विद द बैंक. सो ऑन द ड्यू डेट अगर बिल ऑनर हुआ तो वो पैसा बैंक को मिलेगा, ड्रॉअर को नहीं. दैट्स द रीजन देयर विल नॉट बी एनी एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर. नेक्स्ट एंडोर्स्ड बिल ऑनर. एंडोर्स का मतलब क्या. ड्रॉअर हैज ट्रांसफर्ड दैट बिल टू एंडोर्सी, मतलब ड्रॉअर के पास से तो चला गया वो. सो दैट मीन्स दैट बिल इज देयर विद द एंडोर्सी. सो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर अगर वो बिल ऑनर हुआ तो ड्रॉअर को पैसा नहीं मिलेगा, पैसा किसको मिलेगा, एंडोर्सी को मिलेगा. तो दैट्स द रीजन यहां पे एंडोर्स बिल ऑनर केस में भी ड्रॉअर के बुक में एंट्री नहीं आएगा, बिकॉज ये दोनों केस में ड्रॉअर के पास बिल नहीं है. यहां पे बिल गया है बैंक के पास इन द केस ऑफ डिस्काउंटिंग, बिल गया बैंक के पास, एंड इन केस ऑफ एंडोर्सिंग बिल गया है एंडोर्सी के पास. तो ऑन द ड्यू डेट उनको पैसा मिलेगा. नेक्स्ट इज कलेक्शन बिल. बिल सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन ऑनर्ड. अगर कलेक्शन वाला बिल ऑनर हुआ, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस केस. यहां पे बिल भले हमने बैंक के पास भेजा है, बट यहां पे हमने बिल बैंक के पास रखने दिया है. बैंक इज एक्टिंग एज अ कस्टडियन हियर. सो ऑन द ड्यू डेट बैंक जाएगा ड्रॉई के पास पैसा कलेक्ट करने, एंड आफ्टर कलेक्टिंग मनी दैट मनी विल बी डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट ओनली. तो बैंक पैसा कलेक्ट करके अपनी ही अकाउंट में डालेगा. दैट्स द रीजन बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड. And for doing all these activities, bank will charge you something. So bank charges will be debited because bank is not going to work for free. So bank charges account will be debited and bill sent for collection account will be credited. So ये entries हुए for bill honor के in the books of drawer in 4 cases. Okay? In the books of drawee, अगर बिल ऑनर हुआ तो ऑब्वियसली विल पास अ कॉमन एंट्री बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. व्हाई बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट? बिकॉज जब एक्सेप्टेंस हुआ था तब बिल्स पेबल को हमने क्रेडिट किया था, बिकॉज वो ड्रॉई के लिए लायबिलिटी था. अब वो पे कर रहा है, मतलब दैट लायबिलिटी विल गेट कैंसिल. सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड in order to cancel that bills payable account will be debited to cash bank because money is going out. So here in the books of drawee ऑनरिंग का एंट्री आएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैशर बैंक. लेट्स सी एंट्रीज फॉर डिसऑनर. मतलब जब बिल डिसऑनर होगा तब एंट्रीज क्या आएंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई. सो लेट्स स्टार्ट. हम लोगों ने 4 केसेस देखे थे, रिटेन, डिस्काउंट, एंडोर्स एंड कलेक्शन, जिसमें हमें बिल ऑनर हुआ तो क्या एंट्री आएगी वो हमने डिस्कस किया जस्ट नाउ.
अब देखते हैं अगर बिल डिसऑनर हुआ, इन दैट केस एंट्रीज क्या होंगे। तो फर्स्ट रिटेन्ड बिल अगर डिसऑनर हुआ, इफ रिटेन्ड बिल इज डिसऑनर, एंट्री विल बी ड्रॉई अकाउंट डेबिट। See, if you check, whenever bill gets dishonor, drawee account will be debited. Always, drawee account will be debited. Because if you think from the viewpoint of drawer, drawee is still our debtor. Drawee अभी भी अपना debtor है, मतलब अभी भी उसके पास से पैसा आने वाला है। तो जब भी bill dishonor होगा, drawee account will be debited. And the respective case will be credited. मतलब simple. अगर retained bill है, तो bill receivable का नाम आएगा. Like this. अगर डिस्काउंट बिल है तो वेर वी डिस्काउंट दैट बिल टू द बैंक, बैंक का नाम आएगा। अगर एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर है तो एंडोर्सी का नाम आएगा। और अगर बिल सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर है तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन का नाम आएगा। सो लेट्स मेक इट सिंपल, वेन एवर बिल गेट्स डिसऑनर, ड्रॉअर के बुक में ड्रॉई का नाम विल ऑलवेज बी डेबिटेड। सो जब भी बिल डिसऑनर होगा, ड्रॉअर के बुक में ड्रॉई का नाम डेबिट होगा एंड द केस will be credited. मतलब in case of retained bill, bill receivable will be credited. In case of discounted bill, bank will be credited. In case of endorsed bill, endorsee will be credited. And in case of collection wala bill, bill sent to the bank for collection account will be credited. So this is the entry for dishonor in the books of drawer. In the books of drawee, again bills payable account debit. Bills payable account debit because acceptance के वक्त हमने उसको credit किया था by showing that it's a liability for drawee. बट अब वो डिसऑनर हो रहा है, मतलब अपने को उसको कैंसिल करना है, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, बिकॉज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ड्रॉई, ड्रॉवर इज स्टिल हिज क्रेडिटर। अगर ड्रॉअर के बुक में ड्रॉई का नाम डेबिट हो रहा है, मतलब ड्रॉई के बुक में ड्रॉअर का नाम क्रेडिट होगा। सो ये हो गए डिसऑनर के एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉई। अब जब भी बिल डिसऑनर होगा, ऑब्वियसली एक नया बिल ड्रॉ होगा। नया बिल ड्रॉ होते वक्त, जब नया बिल ड्रॉ होगा, दैट टाइम दे विल टेल यू सर्टेन पार्ट पेमेंट इज टू बी मेड एंड देन ऑन द रिमेनिंग अमाउंट दे वांट यू टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑल्सो। सो नाउ विल सी दोज एंट्रीज जहां पे पार्ट पेमेंट और इंटरेस्ट अमाउंट आएगा। सो इन केस ऑफ रिन्यूअल ऑफ द बिल, वेरी फर्स्ट बिल विल बी कैंसल्ड, यानी सबसे पहले बिल डिसऑनर होगा, तो डिसऑनर का एंट्री जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड। Dishonor के बाद they will give you that certain amount is paid by that drawee, that is part payment, and on remaining amount they want us to calculate interest. तो वो interest calculate करने के बाद we need to pass interest also entry also. तो अगर आप सोचोगे तो interest, अगर drawer के व्यू पॉइंट से देखोगे तो interest drawer के लिए income है, for drawer it is an income. तो interest का entry in the books of drawer will be drawee account debit. So it will be drawee account debit to interest account. Drawee account debit to interest account. In the books of drawer entry आएगा drawee account debit to interest. And drawee के बुक में आएगा interest account debit to drawer account. Because अगर ये drawer के लिए income है तो drawee के लिए वो expense होगा, तो ये इंटरेस्ट का एंट्री। और उसके बाद पार्ट पेमेंट एंड न्यू बिल का एंट्री। सपोज पार्ट पेमेंट हो रहा है तो विल से कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज ड्रॉअर विल बी रिसीविंग दैट मच मनी। सो फॉर पार्ट पेमेंट कैश बैंक अकाउंट डेबिट। अगर नया बिल ड्रॉ हो रहा है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, टू ड्रॉई अकाउंट। तो ये हो गया कंबाइन एंट्री फॉर पार्ट पेमेंट एंड न्यू बिल। बट इफ यू वांट यू कैन पास इट सेपरेटली ऑल्सो, मतलब अगर आप लोगों को चाहिए तो आप दोनों एंट्री को सेपरेट भी पास करते हो। बट बिफोर पासिंग दैट वी शुड रिमेंबर दैट इंटरेस्ट एंट्री विल अपीयर फर्स्ट। इंटरेस्ट का एंट्री पहले पास करेंगे, उसके बाद पार्ट पेमेंट एंड न्यू बिल। आइदर इफ यू वांट लाइक यू कैन पास कंबाइन एंट्री और सेपरेट एंट्री ऑल्सो। अब मैंने जो पास किया वो कंबाइन एंट्री है। अगर आप इसका सेपरेट एंट्री पास करो तो एंट्री आएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई फॉर पार्ट पेमेंट रिसीव एंड बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉई फॉर न्यू बिल। ऐसे दो अलग अलग एंट्रीज भी आ सकते हैं। इन द सेम वे यहां पे कंबाइन एंट्री आएगा ड्रॉवर अकाउंट डेबिट। नाउ फॉर पार्ट पेमेंट ही विल से टू कैश बैंक अकाउंट बिकॉज ड्रॉई के पास से पैसा जाएगा, एंड न्यू बिल के लिए ही विल से टू बिल्स पेएबल अकाउंट। अगेन दिस इज अ कंबाइन एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। तो ये हो गया रिन्यूअल ऑफ द बिल।
रिन्यूअल ऑफ द बिल में हमें एक बात याद रखनी है कि इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन द रिमेनिंग अमाउंट, ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन द रिमेनिंग अमाउंट। मतलब अगर 1000 रुपीज का बिल है जो डिसऑनर हो गया, एंड आउट ऑफ 1000 सपोज ड्रॉई हैज पेड 700, तो ये हो गया आपका पार्ट पेमेंट। तो व्हाट इज द रिमेनिंग अमाउंट? 300. So on this remaining amount, interest will be charged. Sometimes it may happen that question में noting charges दिए होंगे, और अगर noting charges का payment नहीं हुआ है, मतलब अगर वो भी pending है, तो interest calculation में we have to consider that amount also. मतलब part amount of the bill, pending amount of the bill plus noting charges, इन दोनों पे फिर interest calculate होगा. Okay? So ये हो गया about renewal of the bill. Next point is retirement of the bill. Retirement of the bill. Now what is retirement of the bill? See, retirement of the bill का मतलब होता है when drawee makes payment of the bill before due date. मतलब drawee due date के पहले पेमेंट करेगा तो उसको बोलते हैं retirement of the bill. सिंपल बात है, अगर ड्रॉई पेमेंट कर रहा है मतलब ड्रॉर रिसीव करेगा, ड्रॉर पैसे रिसीव करेगा, तो ड्रॉर के बुक में कैश बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड. नाउ ड्रॉई इज मेकिंग पेमेंट बिफोर ड्यू डेट, मतलब कमिटेड डेट के पहले पेमेंट वो कर रहा है, मतलब उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा, ही विल आस्क फॉर डिस्काउंट. तो इन केस ऑफ रिटायरमेंट जो डिस्काउंट हम लोग देते हैं उसको हम लोग कहेंगे रीबेट. तो यहाँ पे रीबेट अकाउंट विल बी डेबिटेड. सो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, rebate account debit to bills receivable because that bill will get cancelled because ड्रॉई पेमेंट कर रहा है. तो ये एंट्री आएगा ड्रॉर के बुक में. अगेंस्ट दैट ड्रॉई के बुक में एंट्री आएगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट बिकॉज बिल इज गेटिंग कैंसिल्ड, टू कैश और बैंक मनी गोज आउट, टू रिबेट मतलब ये रिबेट इसके लिए गेन होगा. अगर हमारे लिए वो लॉस है मतलब वो ड्रॉई के लिए गेन होगा, तो ड्रॉई के बुक्स में रिबेट अकाउंट विल बी credited. So this is a entries for retirement of the bill. Now the next point is insolvency of drawee. Insolvency of drawee. Now sometimes it may given in the question कि drawee insolvent हो गया and because of insolvency he could not pay the entire amount of the bill and he paid 60% or 50% of the amount of the bill. Sometimes they may give you like 50 paise in a rupee or 30 paise in a rupee. Don't get confused. 30 paise in a rupee का मतलब 30%. 20 paise in a rupee का मतलब 20%. Okay? So insolvency of drawee is our next point. यहाँ पे drawee insolvent हुआ and because of insolvency he could not pay the entire amount of the bill. तो सबसे पहला step we need to cancel the bill. यानी जब भी क्वेश्चन में you will come across the line के drawee insolvent हुआ तो पहला स्टेप आपको बिल कैंसिल करना. अब आपको बिल कैंसिल करना मींस व्हाट, यू हैव टू डिसऑनर द बिल. पहला बिल डिसऑनर करो मतलब डिसऑनर की एंट्री पास करो. जैसे हमने डिस्कस किया था 4 केसेस थे, रिटेन, डिस्काउंट, एंडोर्स, कलेक्शन. बिल डिसऑनर हुआ, ड्रॉई का नाम हमेशा डेबिट. इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर ड्रॉई का नाम डेबिट एंड केस क्रेडिट में आएगा. मतलब अगर वो रिटेन बिल है सो बिल रिसीवेबल विल बी डेबिटेड, अगर डिस्काउंटेड बिल है तो बैंक विल बी क्रेडिटेड, और अगर वो कलेक्शन वाला बिल है तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन विल बी क्रेडिटेड, अगर वो एंडोर्स बिल है तो एंडोर्स से विल बी क्रेडिटेड, बट एवरी टाइम ड्रॉई अकाउंट विल बी डेबिटेड. मतलब जब भी बिल डिसऑनर होगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट होगा. तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हमें बिल को कैंसिल करना पड़ेगा. तो फर्स्ट स्टेप इज टू कैंसिल द बिल. नेक्स्ट विल पास एंट्री फॉर रिसीविंग मनी, दैट इज फाइनल डिविडेंड फ्रॉम द ड्रॉई. तो यहाँ पे आपको लास्ट लाइन में बोला होगा कि यू रिसीव 30 पैसे इन अ रुपी एज अ फाइनल डिविडेंड. फाइनल डिविडेंड मतलब इंसॉल्वेंट ड्रॉई से हमें जो फाइनली पैसे रिकवर हुए उसके लिए हमें एंट्री पास करना पड़ेगा. तो सपोज 100 रुपीज ड्यू थे बट हम लोग सिर्फ 70 रुपीज रिकवर कर पाए. दैट मीन्स 100 रुपीज आर ड्यू, 100 रुपीज वर रिसीवेबल फ्रॉम ड्रॉई, आउट ऑफ विच वी कुड रिसीव ओनली 70 रुपीज. मतलब 30 रुपीज का बैड डेट्स हो गया, वो पैसा डूब गया. तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर एंट्री विल बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट. फ्रॉम दिस कैश बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड विद द अमाउंट विच वी हैव रिकवर्ड रिसीव्ड फ्रॉम द ड्रॉई. बैड डेट्स द अमाउंट विच वी कुड नॉट रिकवर फ्रॉम द ड्रॉई टू ड्रॉई अकाउंट. सो एंट्री आएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई.
In the books of drawee, entry will be drawer account debit to cash bank to deficiency. देखो जिस अमाउंट को ड्रॉवर बैड डेट्स बोलेगा, मतलब ड्रॉई के पास उतना पैसा कम है या नहीं है, वी कैन से, तो दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई. सो यहाँ पे जिस चीज को हम लोग बैड डेट्स बोलते हैं ड्रॉअर के बुक में, जिस अमाउंट को हम लोग बैड डेट्स बोलेंगे ड्रॉई के बुक में, इट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी. सो दिस इज अबाउट इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई. नाउ दिस इज द लास्ट सेगमेंट ऑफ जर्नल बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दैट इज एंट्रीज फॉर पेमेंट ऑफ नोटिंग चार्जेस. अब हम लोग ये देखेंगे कि जब नोटिंग चार्जेस पे होते हैं, नोटिंग चार्जेस आर पेड इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ द बिल, तब एंट्रीज क्या आएंगे. सो फर्स्ट, फॉर पेमेंट ऑफ नोटिंग चार्जेस बाय ड्रॉवर, अगर रिटेन्ड बिल है एंड ड्रॉवर इज पेइंग नोटिंग चार्जेस, दैट टाइम एंट्री आएगा इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर. एंट्री विल बी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, बिकॉज ड्रॉवर हियर इज मेकिंग पेमेंट. तो एंट्री आएगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट to cash or bank. And in the books of drawee, entry will be noting charges to drawer. We should know that noting charges are basically expenses of drawee, even though it is paid by the holder of the bill, but those expenses belong to drawee. इसलिए noting charges ये word सिर्फ drawee के book में आएगा. So when noting charges are paid by drawer, entry in the books of drawer will be drawee account debit. हमने ड्रॉई को डेबिट क्यों किया ड्रॉअर के बुक में, बिकॉज ड्रॉई विल बिकम डेटर बाय दैट मच अमाउंट टू कैश और बैंक, बिकॉज ड्रॉई हैज मेड द पेमेंट. एंड एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई विल बी नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉवर. नेक्स्ट, इफ पेमेंट ऑफ नोटिंग चार्जेस इज मेड बाय बैंक, अगर बैंक ने पे किया तो एंट्री विल बी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक. नाउ बैंक ने पे किया मीन्स व्हाट, इफ द बिल इज डिस्काउंटेड वन, अगर ये बिल हमने डिस्काउंट किया, मतलब ये बिल बैंक के पास है और अगर बिल डिसऑनर हुआ है, नोटिंग चार्जेस पे हुए, तो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर विल बी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक. एंड एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई अगेन सेम, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर. यहां पे कॉमन ही एंट्री आएगा. इफ नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय एंडोर सी, नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय एंडोर सी, यानी हमने अगर बिल एंडोर्स किया, ट्रांसफर किया थर्ड पर्सन को और वो बिल डिसऑनर हुआ एंड नोटिंग चार्जेस पे हुए, इन दैट केस एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, जब भी यहाँ पे ड्रॉई अकाउंट डेबिट ही होगा, बिकॉज ड्रॉई विल बिकम आवर डेटर बाय दैट मच अमाउंट एंड हु पेड दैट, एंडोर सी. सो यहाँ पे एंट्री आएगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर सी, बिकॉज बाय दैट मच अमाउंट ड्रॉई विल बिकम आवर डेटर एंड एंडोर सी विल बिकम आवर क्रेडिटर, मतलब हमें उसको पैसा पे करना पड़ेगा. So entry आएगा drawee account debit to endor C account, and once again in the books of drawee entry आएगा noting charges to drawer account. So these are journal entries in case of bills of exchange. So while revising we should keep it in mind that we should be able to memorize and write all those entries properly. तो सबसे पहले हमें ये entries अच्छे से याद रखने, and depending on the question and situation we have to pass the entries along with the proper narrations.